Hello students, welcome back. Students, in previous video we discussed quantum numbers. So I'm giving you a quick revision of 4 quantum numbers which give the complete address of electron in atom. The first quantum number which gives the main energy shell to which electron belongs is called principal quantum number. So अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो उससे आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल या कौन से एनर्जी शेल में है. नाउ अब एक शेल में बहुत से सब शेल्स होते हैं स्टूडेंट्स. सो ऑल दीज सब शेल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर. देन स्टूडेंट्स एक सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं. So the number of orbitals that a subshell can have are given by the third quantum number, which is called magnetic quantum number. And then students, since electron एक tiny magnet है, can spin about its own axis, so the spin motion of electron about its own axis is given by spin quantum number. So we have 4 quantum numbers. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी शेल के बारे में बताएगा, एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल्स, एंड देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स, एंड द स्पिन क्वांटम नंबर आपको स्पिन मोशन के बारे में बताएगा. नाउ स्टूडेंट्स, सो वी नो दैट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, magnetic quantum number ml or simply m, and spin quantum number by m, s or simply s. N can have values 1, 2, 3, 4, 5 and so on. 1 means principal quantum number 1, k shell के लिए, 2 l shell के लिए, and then 3, 4, 5 and so on. l 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है, and इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4 and so on. इसमें 0 is for S, 1 is for P, 2 is for D, 3 is for F, 4 is for G subshell. Then magnetic quantum number can have values minus L to 0 and then plus L. So जितने possible values हैं उतने orientations होते हैं electron cloud के, that means उतने ही orbitals होते हैं. And spin quantum number has 2 values plus minus half. So students, ये just एक quick revision मैंने आपको दे दिया. Now based on this concept, that is concept of quantum numbers, we are going to discuss some numerical problems or questions, and all these questions have been asked in competitive exams. Students, first question is the number of orbitals in an energy level designated by principal quantum number n is equal to. So students, n means principal quantum number. अगर आपको पता है, आपको बताना है उसमें कितने possible orbitals हो सकते हैं. Students, this we have learned that number of orbitals in a shell is equal to n square. So this is a direct question. Number of orbitals आपके n square होंगे students. Now second question is when the azimuthal quantum number has the value of 2, then number of possible orbitals are. So students, इस क्वेश्चन को कैसे करना है? See, अगर आपका एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर गिवन हो तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट्स, दिस वी हैव लर्न्ड दैट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ l प्लस 1. सिंस l का वैल्यू स्टूडेंट्स 2 है, सो वी हैव ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1. सो वी हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 5. सो ऑप्शन D is the correct answer. Now students, we have another question. Now this question says how many electrons can fit into the orbitals that comprise M shell. So M shell में
कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, आपका एम शेल का मतलब हुआ what? Students, first shell is called K, second shell is L, third shell is M. So this is third shell. So principal quantum number is what? 3. Now how many electrons can be fit? So first, number of orbitals कितने हो सकते हैं third shell में? Student, it is given by n square. N is what? 3. So 3 square. So that means we have 9 orbitals. But students, question में पूछा गया how many electrons can be accommodated? So number of electrons कितने होंगे students? Electrons एक orbital में 2 हो सकते हैं, so that is twice of n square. N square is 9, so it is twice of 9. So we have 18 electrons. So answer is option C. Now students, fourth question says that which of the following orbitals has maximum angular momentum? Now student, the angular momentum of electron in an orbital is given by the value of angular quantum number, that is azimuthal quantum number. So for 3s, n we have what? 3. This is shell, and s के लिए L 0 होता है. And students, angular momentum depends on what? L. So we have L plus 1 under root h upon 2 pi. L का वैल्यू स्टूडेंट 0 होने से this is 0. 3p के लिए, for electron in 3p subshell, n is 3, L is 1. So your angular momentum would be under root. We have 1 plus 1 is 2, 2 into 1 is 2. So under root 2 h upon 2 pi. Then we have 3d, which is n is equal to 3, L is equal to 2. Students, एक बात वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें. सी, आपका L का वैल्यू देखो, L का वैल्यू यहाँ पर 0 है, L 1 है, L 2 हो गया. सो L 2 होने से एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा ही. इट विल बी व्हाट? फॉर्मूले में पुट कर दो 2 into 2 plus 3, that is 6 हो गया, 6 h upon 2 pi. And then students, fourth option is 2s. S है तो स्टूडेंट्स आपका n 2 होगा, बट L 0 है, तो अगेन आपका एंगुलर मोमेंटम 2s के लिए 0 ही होगा. सो विच हैज मैक्सिमम? द वन विच हैज हाईएस्ट L वैल्यू, दैट इज 3d. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? सी, इन क्वेश्चन नंबर 5, if an electron has spin quantum number plus half and a magnetic quantum number minus 1, this is minus 1, it cannot be found in. आपको बताना है अगर spin quantum number plus half है and magnetic quantum number minus 1 है, तो इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन से ऑर्बिटल में नहीं हो सकता? We have option d orbital, p orbital, f orbital and s orbital. Student, see, spin plus half है. Okay, spin आपको पता है ये अलाउड है, ठीक है. ml minus 1 ही अलाउड है. That means आपका इनमें से देखना होगा किसके लिए -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं हो सकता. स्टूडेंट्स, d ऑर्बिटल मतलब L is equal to what? 2. So L2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml -2 -1 0 +1 +2. दैट मीन्स -1 अलाउड है. सो इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में हो सकता है. आपको बताना है किसमें नहीं हो सकता. p ऑर्बिटल के लिए L is 1 and therefore magnetic quantum number is what? -1 0 +1. so again -1 यहां भी पॉसिबल है. so that means इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में भी हो सकता है. for f ऑर्बिटल L is 3. so magnetic quantum number is -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3. again students, -1 is possible, so electron can also occupy f orbital. but student, electron, let's see now, s orbital में हो सकता है या नहीं. for s orbital L is 0 and L अगर 0 है तो ml भी 0 है. and but आपको जो अलाउ किया गया है, it is -1, but इसमें -1 पॉसिबल नहीं है. that means अगर किसी इलेक्ट्रॉन
का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इन s orbital. So students, these are some questions which are based on quantum numbers. Now students, I have a subjective question. This is from your NCERT book. Now this question says, describe the orbital with the following quantum numbers. So आपको बताना है कौन सा ऑर्बिटल होगा विच इज डेजिग्नेटेड बाय n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1. स्टूडेंट्स, n अगर 2 है दैट मीन्स सेकेंड शेल का आपका L1 है तो ये p सब शेल हुआ, सो इट इज 2p. सो योर आंसर इज 2p. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज n इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल के L0 है, मीन्स s सब शेल में है. थर्ड क्वेश्चन इज, और थर्ड पार्ट इज n इज इक्वल टू 5, सो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में l इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स f सब शेल में है, बिकॉज l 0 होने से s, 1 होने से p, 2 होने से d एंड 3 होने से f में हो गया. एंड फॉर दिस क्वेश्चन वेयर वी हैव n इज इक्वल टू 3, सो इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड शेल, बट थर्ड शेल के कौन से सब शेल में? It is, since it is 2, that means D. So students, अगर आपके पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं और ये उनके एंगुलर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर क्वांटम नंबर है, so these are the orbitals which are designated by this set of quantum numbers. So इस तरह से आप क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं. Now students, we are going to discuss next topic which is very very important. The topic is Pauli's exclusion principle. Now, what is Pauli's exclusion principle? Students, एक एटम जो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन जो एक एटम में होता है, it is described by or designated by a set of 4 quantum numbers. So that means an electron in an atom is described or designated by a set of 4 quantum numbers. But students, Pauli found that no 2 electrons in an atom can have same value of all the 4 quantum numbers. So this was the statement of Pauli's exclusion principle, that is, no two electrons in an atom can have same value of all the 4 quantum numbers. 4 quantum numbers means आपके कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में कहीं भी हो, उनके सभी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं. सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है से 3s सब शेल में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है 3p सब शेल में. नाउ स्टूडेंट्स, इसके लिए सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, इसके लिए भी 3, बट इसके लिए s है तो एंगुलर क्वांटम नंबर 0, इसके लिए इट विल बी p में है तो 1. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स, वो आपको पता है L0 है तो m 0 ही होगा, लेकिन यहां पर m -1 0 +1, दैट मीन्स एक अलाउड वैल्यू से 0 भी है तो वो भी पॉसिबल है. स्पिन क्वांटम नंबर ms से इसका +½ तो इवन इसका भी +½ पॉसिबल है. बट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स यहाँ 3 0 0 +½ हियर वी हैव 3 1 0 +½ सी ये क्वांटम नंबर है जो सेम नहीं है. मींस कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहीं भी हो, उनके सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे. मींस अगर कोई 3 सेम भी है तब भी एक 4th डिफरेंट होगा. स्टूडेंट्स, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर
से अगर मेरे पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है स्टूडेंट्स, तब भी सभी क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे। से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वी हैव n इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स, दूसरे के लिए भी n 3 होगा। s में है तो l इसके लिए भी 0, l इसके लिए भी 0, एंड l 0 है तो स्टूडेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों के लिए 0 है। बट स्टूडेंट्स एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको पता है दोनों का स्पिन तो ऑपोजिट होगा, सो दैट मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर इसका अगर प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होगा। अगेन सी स्टूडेंट्स, इस सेट में और इस सेट में you'll find that one of the quantum number is different, like यहां पर स्पिन डिफरेंट है, मींस अगर एक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी उनके सभी क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। सो स्टूडेंट्स दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ये भी है जो मैं यहां से आपको बता रहा हूं, दैट एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं लेकिन वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ, बिकॉज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी क्वांटम नंबर्स कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम में सेम नहीं हो सकते, इवन इफ दे आर इन सेम ऑर्बिटल तब भी नहीं हो सकते। सो वी हैव एन ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट फॉर दिस प्रिंसिपल विच इज दैट, सो इसका एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स विच सेज दैट एन ऑर्बिटल can have a maximum of what? 2 electrons. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विथ ऑपोजिट स्पिन। So this is your Pauli's exclusion principle. So Pauli's after the name of the scientist, and exclusion, now this is very important students. Why this principle is called so? So इसका ये exclusion क्यों है? Because when we compare 2 electrons quantum number wise, we find that all the 4 quantum numbers for the 2 electrons cannot be same, हो ही नहीं सकते। That means अगर आप पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखते हैं, यू विल फाइंड दैट से अगर 3 क्वांटम नंबर सेम भी है, से n, l, m, तो स्पिन सेम नहीं हो सकता when they are in same orbital. That means one of the quantum number from the set of quantum number when compared with the set of quantum number of the other electron in the atom will be excluded, and that is why we use exclusion principle. So students, this is very very important principle while filling the electrons in atom also. So students, now next topic we are going to discuss is relative energies of atomic orbitals. So next topic we have energies of atomic orbitals. Now this is also very very important topic. Now students, in hydrogen atom and hydrogen like ions, there is only one electron present in say hydrogen atom or hydrogen like ions. So we say these are single electron systems. So students, अगर आपके पास हाइड्रोजन आटम है या हाइड्रोजन लाइक आयंस है, then the energies of various atomic orbital depends on principal quantum number only. So students, for hydrogen atom and hydrogen like ions, जो relative energies है atomic orbitals के, एक atom में बहुत से orbitals हो सकते हैं, so the energies of the various atomic orbital will depend on, it depends on principal quantum number only. So बहुत सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है अगर आपके पास, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है इट विल डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली, मीनिंग दैट ऑल द ऑर्बिटल्स और सबशेल्स which have same n value will possess same energy. यानी
एक सब शेल में या एक शेल में जितने भी सब शेल होंगे उन सब का एनर्जी सेम होगा, बिकॉज दे हैव सेम व्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट. से मेरे पास से ये एक एनर्जी एक्सिस है. नाउ सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट शेल में दैट इज आपका के शेल जिसको बोलते हैं, we know that only one subshell is possible, which is called 1s. So principal quantum number 1 है. Now second shell में students, that is L shell, we have s which is called 2s, and then we have 2p. But students, for hydrogen atom and hydrogen like ions, ये एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए है. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो उन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होगी. सिमिलरली स्टूडेंट्स, थर्ड शेल विच इज कॉल्ड एम शेल, अब उसमें कितने सब शेल पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स, वो बता देता हूं. वी हैव 3s, देन वी हैव 3p, एंड देन 3d. बट स्टूडेंट्स, all these atomic orbitals possess same energy. So that means energy हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस पे n पे डिपेंड करेगा. So वो सभी ऑर्बिटल्स जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है उनकी एनर्जी भी सेम होगी. ऐसा ही स्टूडेंट्स से मैं फोर्थ शेल के लिए भी बता दूं, विच इज n शेल. उसमें आपके पास s 4s होगा, p 4p. Then students, D में we have 4D, and then F भी possible है students. F में आपको पता है 7 ऑर्बिटल्स होंगे. So 1 2 3 4 5 6 7. So we have 4F. But students, इन सब का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी. बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस. ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है इट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दैट इज वो सभी एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है उनकी एनर्जी भी सेम होगी. स्टूडेंट्स, ऐसे सभी ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी सेम होता है, दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. That means in hydrogen atom, second shell में we have how many? 1 and then 3. So 4 degenerate orbitals हैं. In third shell we have 1, then 3. So 3 plus 1 4, and then 5. That is, we have 9 degenerate orbitals. So what are degenerate orbitals, students? Orbitals of what? Same shell having same energy. So ये है degeneracy. So degenerate orbitals means orbitals having same energy. But students, now we'll discuss energy level diagram or we'll compare relative energies of atomic orbitals in multi-electron system. ये तो था हाइड्रोजन के लिए. हाइड्रोजन के लिए it is very easy because energy depends only on principal quantum number. But now students, listen carefully. The energy of electron in a multi-electron system depends on principal quantum number as well as azimuthal quantum number. So students, this is very important that for multi-electron system, that means all those atoms which have more than one electron. So for multi-electron system, the energies of orbitals depend on what? Principal quantum number and azimuthal quantum number. So n पे भी डिपेंड करेगा और l पे भी डिपेंड करेगा. नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं. सी, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगेन, से दिस इज द एनर्जी एक्सेस. ऊपर को एनर्जी से बढ़ रहा है. सबसे पहला आपका
पहले शेल का जो सब शेल होता है उसका एनर्जी सबसे कम होगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, सो एक ही सब शेल पॉसिबल है 1s, उसका एनर्जी सबसे कम होगा। नाउ n का वैल्यू अगर बढ़ेगा, नाउ स्टूडेंट n 2 है तो आपको पता आपके पास यहां पर 2s होगा, बट देन वी हैव 2p ऑल्सो। सो स्टूडेंट सेकेंड शेल के लिए वी हैव 2 सब शेल्स एंड स्टूडेंट नाउ यू सी अब उनके एनर्जी सेम नहीं है, सो दैट मीन्स in multi-electron system the relative energies of the atomic orbitals they depend on principal quantum number as well as angular quantum number. So आपने देखा that first shell में 1s ही था, चलो उसका lowest energy है, then second shell के लिए n बढ़ा तो energy बढ़ गया, but 2s और 2p में students 2s और 2p का energy same नहीं है, 2p has slightly higher energy than 2s. Students in third shell we have what 3s, so एक हो गया हमारे पास 3s. देन स्टूडेंट्स एक हमारे पास होता है what 3p, से 3p एंड देन स्टूडेंट्स n के लिए आपको पता है d भी पॉसिबल है, सो वी हैव d ऑल्सो, सो वी हैव d which is 3d. Similarly students fourth shell में we have 4s, but student यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है that 4s जो है उसका जो एनर्जी है 4s का, फोर्थ शेल का है 4s हो गया ये, वो जो एनर्जी है स्टूडेंट्स वो 3d से भी कम है. देन स्टूडेंट्स वी हैव 4p, से इसी का एक और possibility है which is 4p. Then we have 4d and then we have 4f also, so 4fp और ऊपर होगा स्टूडेंट्स, तो इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं 4f से इधर 1 2 3 4 5 6 and 7, this is 4f. आगे भी मूव कर सकते हैं, बट स्टूडेंट हियर वी सी दैट एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एंगुलर क्वांटम नंबर. सी स्टूडेंट्स नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट अब हमें ये देखना है दैट किसका एनर्जी कम किसका ज्यादा और क्यों. स्टूडेंट्स यहां पर इसका एनर्जी सबसे कम है क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, L भी 0 है. यहां पर बेसिकली स्टूडेंट्स हम यहां पर n+l रूल अप्लाई करने वाले हैं, उसी से अंडरस्टैंड करना है दैट ऑल दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर n+l वैल्यू दे हैव लोअर एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स इसके लिए n+l कितना होगा, सी n हो गया 2, l हो गया 0, सो वी हैव 2, सो n+l वैल्यू ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा होगा. नाउ स्टूडेंट्स इसके लिए n+l कितना होगा, n is 2, l is 1, so we have 3 and that is why it has higher energy. Then 3s के लिए n+l, it is 3 plus 0, so 3. Now students here we have that when n+l value is same, जब n+l same होगा, in that case the orbital with lower n has lower energy, or we say orbital with higher n will have higher energy. But ये तब अप्लाई करना है when two orbitals have same n+l value, like 3s और 2p दोनों का n+l वैल्यू सेम है, बट स्टिल 3s का ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है. सो जहां n+l रूल नहीं लगेगा वहां n रूल लगाएंगे, दैट मीन्स जिसका n ज्यादा है उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा. अदरवाइज वी यूज n+l रूल. अगेन स्टूडेंट 3p की एनर्जी ज्यादा है बिकॉज n+l इसके लिए 3 + 1 what 4 होगा. 3d के लिए n+l 3 + 2 that is 5 होगा. एंड स्टूडेंट्स नाउ यू कैन एक्सप्लेन कि ये 4s फोर्थ शेल का है तो उसकी एनर्जी 3d सब शेल से कम कैसे हुई. स्टूडेंट्स n+l कितना होगा, इसका n हो गया इसका 4, l हो गया 0,
सो इट इज 4. सो n plus l कम होने की वजह से इसका एनर्जी कम है. सो सिमिलरली स्टूडेंट्स वी कैन एक्सप्लेन द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो स्टूडेंट्स मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स they depend on principal quantum number as well as angular quantum number, and what we observe is that all those orbitals which have lower n plus l value, they have lower energy, but as n plus l increases, energy increases, and when n plus l is same, then n को देखना होगा, जिसका n ज्यादा है उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा. एंड यहां पर ये काफी अनएक्सपेक्टेड है दैट 4s 3d से नीचे क्यों है, तो उसके लिए भी n plus l, जहां n plus l रूल नहीं लगेगा वहां n अप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.